بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر صحت پی کے ایل آئی میں اجلاس ہوا ہے۔ پی کے ایل آئی میں غریبوں کے علاج کے لیے جاری پروگرامز کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعظم کی جدید آلات کے حصول کے لیے انتظامی مراحل کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پی کے ایل آئی کو مکمل فعال کرنے کے لیے حکومت کوشاں ہے۔ شہباز شریف نے پی کے ایل آئی میں صفائی کے انتظامات کو مزید بہتر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اسی بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد یاسین سے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا جی، وزیر شہباز شریف نے آج پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ پر پی کے ایل آئی لاہور کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پی کے ایل آئی میں غریبوں کے علاج کے لیے جاری پروگرامز پر جائزہ اجلاس لیا گیا۔ وزیر اعظم نے پی کے ایل آئی میں زیر علاج مریضوں اور تعینات ڈاکٹر سے بھی خصوصی گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پی کے ایل آئی میں تعینات ڈاکٹر دستیاب وسائل کو خلوص نیت سے غریب مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کریں۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ غریب مریضوں کے لیے جدید علاج کا یہ ادارہ خلوص نیت اور خدا کی خوشنودی کے لیے بڑی محنت اور سے بنایا گیا تھا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں اسے مکمل طور پر فعال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پی کے ایل اے میں جدید علاج کی سہولتوں کو غریب مریضوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر بلا تفصیل استعمال کیا جائے۔ پی کے ایل اے میں جدید علاج کے لیے درکار جدید علاج کے حصول کے لیے انتظامی مراحل کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے نرسنگ کالج کے پروجیکٹ میں فنی تعلیم کے عالمی معیار کو یقینی بنانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی بھی خصوصی ہدایت کی۔ بہت شکریہ یاسین آپ کا۔ زمان پاک کے اعتراف سے تجاوزات ہٹانے کے بعد صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے گرین بیلٹس کو بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ زمان پاک کی سیکیورٹی پر پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تاحال زمان پاک کے اعتراف کے راستے نہیں کھل سکے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں؟ اپنے جانے کے نمائندے سے حمزہ خورشید سے۔ جی خورشید بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں زمان پارک کے باہر، اور یہ زمان پارک کا وہ حصہ ہے جو پچھلے گزرے کئی مہینوں سے میلے کا سما دیتا رہا ہے۔ یہ گرین بیلٹ اور اس کے علاوہ سڑک کے اوپر جو مرکزی نمائندگان اور اس کے علاوہ دوسرے اضلاع سے آنے والے نمائندگان کے کیمپس موجود رہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیسک پر جو ترانے ہیں پارٹی کے وہ چلتے رہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ میلے کا سما رہا۔ گزشتہ رات جو ہے وہ متعلقہ اداروں کی جانب سے آپریشن کیا گیا، اور اس گرین بیلٹ کو بحال کرانے کے لیے ذرائع کے مطابق جو مذاکرات طے پائے تھے عمران خان سے، اس پر عمل کیا گیا اور اس گرین بیلٹ کو کلیئر کیا گیا۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ گرین بیلٹ ہے جو کہیں سے بھی نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کے عقب میں جو ہے عمران خان کا گھر موجود تھا، اور اس کے سامنے جو ہے سڑک کے اوپر کارکنان کے جو ہیں وہ کیمپس رہتے تھے۔ یہ اب تحد نگاہ جو ہے وہ بحال کروا لیا گیا ہے، اور گیٹ نمبر 2 سے لے کے گیٹ نمبر 1 تک عمران خان کی رہائش گاہ جتنی بھی جگہ ہے اس کو کلیئر کرا لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے گرین بیلٹ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پودے لگانا بھی شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ متعلقہ اداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو باقاعدہ دوبارہ اسی شکل میں لایا جائے گا جس شکل میں پورے لاہور کے گرین بیلٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں سیکیورٹی کی، تو میرے بائیں عقب اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ وہ شٹرنگ ہے جو زمان پارک انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ہے، جو کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ہے۔ اس کو جو ہے وہ نہیں چھیڑا گیا، نہ اس کو ہٹایا گیا ہے متعلقہ اداروں کی جانب سے، کیونکہ ذرائع کے مطابق اداروں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی بھی ضروری ہے، تاحال مشکل کسی بھی جو مقامی لوگ ہیں ان کو کوئی مشکل نہ آئے، اس لیے گرین بیلٹ کو کلیئر کروانا ضروری تھا۔ اس وقت زمان پارک جو عمران خان کی رہائش گاہ ہے اس کا ہولڈ پولیس کے انڈر ہے، اور پولیس باقاعدہ عمران خان کے گیٹ پر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو انٹری اور ایگزٹ گیٹ ہے اس پر بھی پولیس کی نفری موجود ہے۔ اس کے علاوہ لیکن اگر میں بات کروں جو زمان پارک کے گرد و نواح کے راستے ہیں تو وہ تاحال ابھی تک کھولے نہیں گئے۔ جو کل وزیر اعلیٰ کا بیان سامنے آیا تھا ذرائع کے مطابق، اس میں یہ تھا کہ گرین بیلٹ بحال ہونے کے بعد جو ہے وہ گرد و نواح کے زمان پارک کے تمام راستے کھول دیے جائیں گے، لیکن ابھی تک جو زمان پارک کے گرد و نواح کے راستے ہیں وہ ابھی تک بند ہیں، اور اس کے علاوہ ناکوں کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی چند نفری بھی موجود ہے۔ راستے جو ہیں وہ بند ہونے کے باعث جو شہری ہیں ان کو خاصی دشواری کا سامنا ہے، اور ٹریفک صورتحال زمان پارک کے گرد و نواح سست روی۔ ٹریفک صورتحال خاصی متاثر ہے۔ حمزہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل امن و امان سے متعلق اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں سے متعلقہ افسران شرکت کریں گے۔ اجلاس میں سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کی گرفتاریوں اور کارروائیوں سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔
इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे, हसन रजा से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया है, जबकि इजलास में विफाक और सूबों से मुतालिका अफसरान शिरकत करेंगे, जबकि इजलास में सानहा नोमे में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी और कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी लिए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया है कि हकीकी आज़ादी का वक्त आ गया है, तो अब छुपते फिर रहे हैं ये लोग। चोरों से हिसाब मांगने पर पूरे मुल्क में आग लगा दी गई है, जबकि मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। रिपोर्ट देखिए। नून लीग के उलमा मशाइख विंग पंजाब से मॉडल टाउन में खिताब में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान जैसी जमानतों की बरसात आज तक नहीं देखी। रिमांड में किसी की जमानत पर रिहाई होती है, वक्त आएगा सबको हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत दी गई और थोक के हिसाब से दी गई, बारिश की तरह जब जमानतों की बरसात हुई, तो उसके बावजूद उनको पता था कि मुझे कहीं 3 MPO में ना पकड़ ले, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है, उसमें ना पकड़ सके। ये रात 11:30 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे रहे। इस्लामाबाद के किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को ये तौफीक नहीं हुई कि वो ये कहें कि इधर से बाहर निकलें, अदालत का टाइम खत्म हो गया, आप एक मुजरिम हैं या मुल्जिम हैं, आप पे इल्जाम है, आप अदालत को अपनी पनाहगाह नहीं बना सकते। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क फितने की लपेट में है, इसे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। मुखालिफिन को जरर पहुंचाने के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल किया गया। शर्मनाक बात है कि छोटे बच्चों की क्या ट्रेनिंग की जा रही है। शर्मनाक बात है कि आप छोटे बच्चों की क्या ट्रेनिंग करें। वो पूरी दुनिया में हर किसी ने जो सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो देखी जिसमें एक बच्चा जो है वो क्या बोल रहा है, मैं उस बच्चे को क्या इल्ज़ाम दे सकती हूँ, लेकिन मैं उसके माँ बाप को ज़रूर कहूँगी कि आपने बच्चे को किसी ऐसे इंसान की परवरिश में दे दिया जिसको खुद पता नहीं है। मरियम नवाज का कहना था कि जब ये ऐश और तैश में थे, इनको खौफ खुदा नहीं था, अब मकाफात अमल है। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम सियासत की नज़र हो चुका है। ज़मान पार्क के गिरदोनवाह में ट्रैफिक का दबाव है। केनाल रोड ज़मान पार्क आने और जाने के लिए बंद है। डेविस रोड और गढ़ी शाह में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरी परेशान हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे शाहजेब शहजाद। बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गढ़ी शाहू कनाल पुल के नीचे मौजूद हूँ, जहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बुरे तरीके से दरहम बरहम हुआ दिखाई देता है। ट्रैफिक जो है वो डेविस रोड पर भी दबाव का शिकार है। इन दोनों रोड्स के ऊपर जो है वो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और शहरियों को ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर ज़मान पार्क के गिरदोनवाह में दीगर जो शाहराहें हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक दबाव का शिकार इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि ज़मान पार्क आने और जाने वाले जो केनाल रोड है उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है और वहाँ पे भी पुलिस की नफरी दिखाई दे रही है। यही बड़ी वजह लगती है कि जो दबाव है ट्रैफिक का, उसका प्रेशर जो है वो दूसरी शाहराहों पर नज़र आ रहा है। इस वक्त यहाँ के मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ट्रैफिक किस तरीके से बुरे तरीके से दबाव का शिकार है। दरहम बरहम ट्रैफिक का निज़ाम हो चुका है। वो मनाजिर आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल सवार हो या कार सवार दोनों ही ख्वार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक लंबी कतारें गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की दिखाई दे रही हैं, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स भी जो हैं वो भी उस तरीके से काम करते दिखाई नहीं दे रहे कि वो जल्द से जल्द ट्रैफिक को बहाल कराएं और डाइवर्जेंस चाहे लगा दी गई हों, लेकिन वार्डन्स की भी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द जो है वो ट्रैफिक को बहाल कराएं ताकि शहरी जो हैं उनको ख्वारी का सामना ना करना पड़े। इस वक्त जो केनाल पुल है गढ़ी शाह का, धर्मपुरा पुल, उसके नीचे भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और चारों तरफ से ट्रैफिक जो है वो आपस में एक जत्था नज़र आ रहा है। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। स्टेट बैंक ने मुल्की मईशत पर छमाही रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवा माली साल की पहली छमाही में पाकिस्तान के मुआशी हालात में बिगाड़ देखा गया। मुआशी तरक्की की शरह 2% के हदफ से कम रह गई है। ये रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ने मुल्की मईशत पर जारी रिपोर्ट में बताया है कि मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए स्टेट बैंक ने पहली छमाही में पॉलिसी रेट में मजीद 2.25% इजाफा किया, जबकि हुकूमत ने चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्रांट्स और तरक्याती अखराजात कम किए। बैरूनी खातों पर दबाव को कम करने के लिए दरामदात को महदूद किया। पहली छमाही में ज़र मुबादला के ज़खायर में शदीद कमी वाक़ हुई। मुआशी सुस्त रवी के बायस निजी शोबे के कर्जों और टैक्स वसूलियाँ हदफ से कम रहीं। स्टेट बैंक ने माली साल 2023
2023 में GDP नुमाया तौर पर कम रहने की तवक्को जाहिर कर दी। स्टेट बैंक का कहना है कि मौशी सुस्त रवि के बाइस माली साल 2023 में GDP 2% के हदफ से भी कम रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई जो पहली छिमाही में 25% पर पहुंच गई है, रवां माली साल 27 से 29% तक रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा हो गया। लोड शेडिंग का चेन फिर बोतल से बाहर निकल आया। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि लेस्को की बिजली की तलब 4200 मेगावाट से तजावज़ कर गई है। NPCC की जानिब से लेस्को को 3800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। ज़राए के मुताबिक लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल ज़्यादा होने के बायस शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से ज़ायद है। लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से हाई लाइसिस फीडर्स पर भी 3 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। तो दूसरी जानिब लाहौर पुलिस के एहलकारों और मातहत अफसरान के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। लाहौर पुलिस के 97 ASI और कांस्टेबल्स को अगले ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स के 97 अफसरान और एहलकारों की अगले ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। 74 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 23 कांस्टेबल्स को अगले ओहदों पर तरक्की दे दी गई। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कि मुलाजमीन की तरक्कियों के मामला तेज़ी से तय किए जा रहे हैं। मुलाजमीन की बरवक्त प्रमोशन से शहरियों की खिदमत और सर्विस डिलीवरी में मज़ीद बेहतरी आएगी। लाहौर में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी फैमिली डॉक्टर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। लाहौर PC होटल में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी मेडिकल कॉन्फ्रेंस, मुल्की और गैर मुल्की सीनियर डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत। मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल और असरात से मुतालिक तजावीज़ दी गई। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि आवाम को ख़तरनाक बीमारियों से निजात दिलाने के लिए फैमिली मेडिसन को बुनियादी हैसियत हासिल है। माजी में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सहूलत सिर्फ अशराफिया को मुयस्सर थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 5,500 प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज हो चुकी हैं, चाहे वो DG खान है, चाहे वो रहीम खान है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि गरीबों की हुई है, बिल्कुल उन लोगों की जो जिनके लिए ख्वाब था। वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, हमारे मुआशरे में अतायत डॉक्टरों का रूप धार कर इंसानी जिंदगियों से खेल रही है। इंटरनेशनली रेफरेंस सिस्टम को बेहतर कर लिया, वहाँ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिसिन नहीं देता, यहाँ अब भी है। इसी अंदाज में ट्रेनिंग ऑफ फैमिली मेडिसिन, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन अपने लेवल पे काम कर रहा है, 1000 से ज़्यादा इस वक्त MCPS है। डॉक्टर बुशरा हक ने मेडिकल कॉन्फ्रेंस के शुरा को ब्रीफिंग दी और कॉन्फ्रेंस में लगे मेडिसन और मेडिकल आलात के स्टॉल्स का भी दौरा किया। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। फिलहाल वक्त इतना ही।